Hello and welcome back to the third part on bias variance trade-off. So earlier we have seen that how we can minimize the overfitting situation with the help of cross-validation, regularization and gradient descent. So now we will see the coding part of it. I hope आपको सारा concept समझ में आ गया होगा that how we will minimize the rate of error. तो अब हम कोडिंग सेक्शन में आ जाते हैं. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बेसिक लाइब्रेरीज जो है उसको पहले इंपोर्ट करा लेते हैं. इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट matplotlib dot pyplot as plt, import cbond as sns. एक मैजिक फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे %matplotlib inline. तो ये हमने यहाँ पे सारे बेसिक जो मॉड्यूल्स होते हैं वो हमने लोड कर लिया है. आई होप यू आर well acquainted with these libraries. So now what we will do is we will work on a data set which is already present in the sklearn library, the breast cancer data set. It's a very famous data set, you might hear very widely. So we will take that data set. So most of the data set in sklearn package are filtered data set and less treatment is required. So we are taking the breast cancer data set, and what we will do is we will first transform that data set into a frame, pandas data frame. We will look what are the parameters, what are the features of it, and what we will classify. So basically we will be using logistic regression, and in this logistic regression only we will be seeing two types of logistic regression. First, a simple logistic regression. Second, logistic regression with cross validation. And subsequently we will see that how we can minimize the features which will be done with the help of recursive feature elimination technique of the feature selection class. And after that we will be seeing the stochastic gradient descent classifier, which is already present in the sklearn library. So let's start with this. So first from sklearn dot datasets, from sklearn dot datasets import load breast cancer, from sklearn dot feature selection import RFE. As I mentioned that we will be using the recursive feature elimination, and yeah, we can also use the recursive feature elimination with cross validation also, so we will be importing that also. So RFE CV. Okay, now from sklearn dot model selection, what we will import is, we will see the cross validation, in which we will be putting the estimator, the training data and the testing data, cross validation score, and also so when you will
click tab on it, so we'll be getting these kinds of menus. It's a shortcut in Jupyter Notebook. Now from sklearn dot linear model import logistic regression, logistic regression with regularization. You can also see that we have lasso and the ridge, lasso with cross validation, lasso with cross validation, and also, as I mentioned earlier, also we'll be using the stochastic gradient descent classifier, so SGD classifier. Okay, so now we have imported all our model, and yeah, one more thing, from sklearn.model selection import trained test split, which is we will use to split the data. Okay, so let's enter. Yes, we have got it. What we will do is we will load the data set. So what I will do is, first, as we have imported the breast cancer dataset from the dataset class, we will first instantiate that class with an object. So can equals to load breast cancer, and if you are using a new upgraded library of sklearn, then what you can do is you can set a keyword here inside this as frame equals to true, frame xy equals to true. Okay, so you can do that. Next, we have instantiated. Now we will convert this into the pandas data frame, but before converting this to pandas data frame, one thing I want to tell you, that if we are using an older version of sklearn, that frame xy equals to true, that keyword is not present in the older version. It is only present in the newer version, like 0.23 onwards. So we will see an older procedure, that how you will convert any kind of data, these raw data, into a data frame if it is not data frame. So how you can do this? So for that, what we will do is, we will first, I hope you are familiar with NumPy concatenation. So data equals np dot c, which will help you to concatenate. Okay, so in that I will write can of data comma can of target. So basically these are only the data points, the data and the target. Next, so now we will add the columns. So we'll be using the append function of the NumPy, np.append and dot feature names comma bracket target. Okay, and now
db equals to pd dot data frame c comma columns equals columns. So our data set has been framed, so let's see it. So yes, this is the data set that we have. We have the target column and all of it is the feature vector. So now we have successfully converted into the data frame, and next what we will do is we will first apply logistic regression, then logistic regression with cross validation. So what we will do is we will first, so we will name them as model 1, model 2 and model 3. So this is the simple logistic regression. Simple logistic regression. Logistic regression. So we will define it as model 1 equals to, we will instantiate the logistic regression class. Logistic regression and let's see what all the parameters that it contains. क्या क्या इसमें parameters होती हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं. तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक C वैल्यू है and this is the regularization parameter. ओके और यहाँ पे देखिए एक पेनल्टी भी है, L2 पेनल्टी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है with max iteration of 100 times. Multi-class equals to 1, you can set it to true or false. Now another thing that helps in reducing the overfitting and is majorly used in deep learning, in machine learning also it is used, but it's majorly used in deep learning, that is early stopping. It is also another method to reduce the overfitting. In early stopping, what happens is when you reach the much required gradient descent, that is when your error is very much low, at that point the model will stop training itself and it will give the best accuracy out of it. यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एरर जो है और बहुत ही मिनिमल होगा ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेशन के वक्त. उस वक्त मॉडल क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा. जिस पॉइंट पे वो स्टॉप हो रहा है वो एक बेटर एक्यूरेसी देगा वो मॉडल. सो इट इज़ अ कंसेप्ट इन विच द मॉडल विल स्टॉप अर्लियर व्हेन इट विल गेट इट्स डिजायर्ड ग्रेडियंट डिसेंट. तो ये जो टॉलरेंस लेवल जो है ये हमारा अर्ली स्टॉपिंग है. सो व्हेन द एरर विल बी एज मच एज लो when tweaking with 0.001% tweaking rate, that means the tolerance level, it will stop early. अगर आप यहाँ पे मैक्स इटरेशंस 100 देते हो या फिर 1000 भी देते हो तो ये टॉलरेंस लेवल जब आपका एरर बहुत ही कम होगा वो वहाँ पर आके रुक जाएगा. एंड वी नो दैट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ बाइनरी क्लासिफायर. सो लेट्स सी फर्दर. So we've instantiated the model. Now let's divide it into the training and the testing set. So first let's see model 1 dot columns. What the columns does it has? Oh sorry, as I mentioned earlier also, first make the copy of it. So dbc dot columns. So these are the columns of the
breast cancer dataset. Next, what we will do is we will divide these features into the required input feature and the output feature, that is the feature to be predicted. So we are predicting the target, that whether it is a malignant or a benign. So let's divide it. So we'll as X input feature DBC of, first what we will do is we will first take, since I mentioned that most of the dataset in sklearn package are filtered, so in this case what we will do is we will take all the parameters and as input feature and Y the output feature as the target. Okay, so now what we will do is same, we will do the splitting of our data set. Splitting of data set. So first X train X test equals to X test comma Y train comma Y test equals train test split X and Y, and we will give the test size equals 0.3. that means the 70% as training set and 30% as testing set. तो ये सारे पैरामीटर्स लेने के बाद हम लोगों ने उसको स्प्लिट किया अभी रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 0, हमने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिट करेंगे हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में. सो लेट्स फिट इट. model 1 dot fit X train comma X test X train comma Y train Y predict equals to model 1 dot predict X test and next we will, okay, first let's do this. So sorry, that's model underscore 1. Okay, so the model has learned. Now let's check the accuracy of it, and also if you can see, you can check the intercept also. So first let's check the accuracy. So I hope we have inputted the accuracy. Okay. So one more thing we need is that I missed it, sorry. From sklearn.matrix we have to evaluate our model. So for evaluation, for classification, generally in classification techniques, you have to import a confusion matrix, a classification report, and an accuracy score. Like in linear regression, what we did was we used this score function in the linear regression model, and here we will use the accuracy score function. So from sklearn.matrix import confusion matrix classification report and the accuracy score. Okay, and now let's check the accuracy of it. Accuracy score of
ypred and ytest. So as you can see, it's 96% accurate. It's 96% accurate. Now this okay, so let's print the classification report also. So print, first we will print the confusion matrix. So print confusion matrix of so this is the confusion matrix. So as you can see, this is true positive, true negative, and true positive, true negative. So true positive is 62, true negative to true positive is 1, which is very much low. True positive to true negative is 5, very much low, and true negative to true negative is 103. Since one more thing, since in this data set we only have two categories, that is the malignant and the benign, so the confusion matrix resulted in 2 cross 2 matrix. But if you have the multi-class classification, in that case you might get more than 2D matrix. Okay, so next we will print the classification report. Classification report of ypred, ytest. So this is the classification report that we have. We have the precision, we have recall, F1 score, and support. Okay, now let's try to plot these data points. plt.plot ypred, ytest. Okay, so as you can see, it's a linear boundation. So these are the 4 points that the model has predicted. So if you want to check the particular data, so as you can see, either 0 and 1. So basically it will plot how much it has predicted, and we see the ytest that we have, it will also almost give the same result between the 0 and 1. So we have the accuracy of 96%, as you can see. Okay, but wait, plt.plot ypred, marker equals plus. Okay, so as you can see that this plus sign or the orange color is of the predicted value, and all these things are of tested value, the blue points. So now let's move towards logistic regression with cross validation. So before going to that section, first let's cross validate this model only. Okay, remember we imported the cross validation function from the sklearn. So we will apply the cross validation. Now what we will do is, as we can see here, we imported the cross validate and cross val score. Now what first see what cross validate it has. So it says that missing two required positional arguments, estimator and x. So in this we have used the logistic regression estimator. So
you have defined it as model 1. It is a trick. Whenever you see that you don't know what that function contains, just simply run it. Automatically you will see that it will show you that what it is missing and what are the required arguments. Okay, so cross validate model 1. Now what we will do is we will provide it with X train and X test. Okay, okay, so missing one positional argument Y. So now as I mentioned earlier also, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है कि वो ट्रेनिंग सेट पर को ही सबसेट में डिवाइड करता है और फिर जितने नंबर ऑफ क्रॉस वैलिडेशन स्टेट है उसको फर्दर वो उसमें से एवरेज क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकालता है. तो हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, हमने क्रॉस वैलिडेट फंक्शन लिया, उसमें एस्टिमेटर पास कराया और उसके बाद दोनों ट्रेनिंग सेट दैट इज एक्स ट्रेन एक्स एंड वाई हमने वहाँ पे पास कराया. पास कराने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिक्शनरी रिटर्न हुआ है, दैट इज द फिटिंग टाइम, द स्कोर टाइम ऑफ द इवैल्यूएशन. और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो क्रॉस वैलिडेशन नंबर होता है वो 3 होता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट स्कोर जो आया है वो है 93, 89 एंड 95%. तो हमारा मॉडल जो था वो थोड़ा बहुत ओवरफिट हो चुका था, जिसके वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एक्यूरेसी आया वो था 96.4% और लाइक 96.5%. बट जब हमने क्रॉस वैलिडेट किया तो उसमें आया हमारा 93.94%, नियर अबाउट है. एंड द थर्ड क्रॉस वैलिडेशन में आया 95.45%. तो अब अगर आप इसका एवरेज अगर निकाल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सपोज अगर मैं इसको एक वेरिएबल से इंस्टेंशिएट करता, सपोज cv इक्वल्स टू दिस एंड cv डॉट कीज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंस ये डिक्शनरी वैल्यूज था तो हमने यहाँ पर ये निकाल लिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो 3 टाइम का जो क्रॉस वैलिडेशन हुआ था उसका ये स्कोर निकला. आप अगर चाहें तो अब अगर आप सोचेंगे कि नहीं आपको इतना नहीं करना, आपको सिर्फ स्कोरिंग निकालना है, तो भी आप कर सकते हैं. एसक्यूएल में ये प्रोवाइडेड है. आपको क्या करना है कि CS इक्वल्स क्रॉस वैल स्कोर करके आपको फर्स्ट देखना होगा कि क्या पास कराना है. तो 2 इसमें भी सेम है, ये 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स एस्टिमेटर एंड एक्स एंड वाई. तो हम इसमें एस्टिमेटर पास करेंगे फर्स्ट, मॉडल 1 कॉमा एक्स ट्रेन. याद रखिएगा सिंस क्रॉस वैलिडेशन कर रहा हूँ ये ट्रेनिंग सैंपल पर ही क्रॉस वैलिडेट होता है. सो एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन. तो ये हमारा हो चुका है. आप वार्निंग्स को इग्नोर कर सकते हो. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे फिट टाइम, स्कोर टाइम और टेस्ट स्कोर जो आपने निकाला था, विद द हेल्प ऑफ सिंपल क्रॉस वैल स्कोर आप यहाँ पे अपना एक्यूरेसी निकाल सकते हो. तो CS ऑफ 1 सपोज जैसे है तो 89. तो अगर आप चाहो तो इसका एवरेज भी कर सकते हो. तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल
जिस वेरिएबल में हमारा जो लिस्ट सेव था उसी को जस्ट सिंपल cs डॉट मीन कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एवरेज क्रॉस वैलिडेशन स्कोर आया है वो है 0.9297, दैट इज द 92.97% और सिमिलर टू 93%। तो ये तो था सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन और बाद में फिर हम लोगों ने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर अप्लाई किया। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस वैलिडेशन स्कोर जो कि एम्बेड है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉड्यूल में ही। Now what we will do is we will instantiate model 2 equals logistic regression with cross validation। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पैरामीटर्स देखेंगे कि क्या पैरामीटर्स है। तो जैसा कि हम लोग और एक चीज इसमें एक ट्राई करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि इसमें क्रॉस वैलिडेशन जो था वो 3 था, तो 3 बार हमारा एक्यूरेसी था। तो हम लोग भी इसमें 3 बार क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट द पैरामीटर्स डज इट कंटेन्स। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्स रेगुलराइजेशन पैरामीटर है CS10, क्रॉस वैलिडेशन इक्वल्स टू 1। आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर यहाँ पे दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 3 देंगे इसी पैरामीटर में। मैक्सिमम इटरेशन इज 100, टॉलरेंस लेवल इज 0.01। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। सॉल्वर सेम है लॉजिस्टिक रिग्रेशंस की तरह। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद CV एंड नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनवर्स रेगुलराइजेशन जो था यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 10 है। दैट इज द CS। क्लास वेट सेम है। विद CV लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद CV हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर CV पैरामीटर है, यहाँ पे कोई CV पैरामीटर नहीं है। और यहाँ पे पेनल्टी L2 पेनल्टी है, यहाँ पर भी L2 पेनल्टी ही यूज किया जाएगा। दैट इज द रेंज। स्कोरिंग इसमें पैरामीटर प्रेजेंट था इसमें, बट इसमें स्कोरिंग नहीं है। टॉलरेंस लेवल सेम है। सो नाउ लेट्स build our model with logistic regression CV। so model 2 equals to CV। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस वैलिडेशन हम लोग देंगे 3 का। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि क्या हम जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया फिर उसका जो क्रॉस वैलिडेशन जो अप्लाई किया वो ये एक ही साथ करके हमें रिजल्ट देगा। सो लेट्स सी। सो रिमेनिंग ऑल अदर पैरामीटर्स अनचेंज्ड हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब हम इस पे फिट करेंगे। तो मॉडल 2 डॉट फिट x ट्रेन कॉमा y ट्रेन ये फिट हो चुका है। काफी लंबा वार्निंग्स है तो आप वार्निंग्स को इग्नोर ही कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपडेटेड हो चुका है। यहाँ पे अब क्रॉस वैलिडेशन जो है अब 3 हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको फिट करेंगे। फिट ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रेडिक्ट करेंगे। सो y predi इक्वल्स टू मॉडल 2 डॉट प्रेडिक्ट x टेस्ट तो ये प्रेडिक्शन हो चुका है। अब हम लोग एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। एक्यूरेसी स्कोर ऑफ, याद रखिएगा हमने क्रॉस वैलिडेशन भी जब किया था तब भी हम लोग ने 3 बार क्रॉस वैलिडेशन हुआ था ट्रेनिंग सेट के ऊपर, और इस बार भी हम लोग 3 ही ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज द एक्यूरेसी स्कोर ऑफ इट। सो y pred कॉमा y test। okay, so let's check the accuracy out of it. So it is giving 96
परसेंट जस्ट फॉर ये आप देख सकते हैं कि 96.49% है। और जब हम लोग नॉर्मल क्रॉस वैलिडेशन जब हम लोगों ने किया था तब हमारा आया था 92.971, दैट इज 93%। तो डिफरेंस तो है ऑब्वियसली, बट ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, उसी रेंज में ही है हमारा। तो अगर आप चाहो तो इसको भी क्रॉस वैलिडेट कर सकते हो। लेट्स ट्राई इट। सो क्रॉस वैलिडेट एस्टिमेटर है हमारा मॉडल 2। हम लोगों ने मॉडल 2 के नेम से इंस्टेंशिएट किया था एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। कैलकुलेटिंग और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट स्कोर जो है वो भी सेम 97, 92, 94 इसी रेंज में ही है। और हमारा जो ओरिजिनल एक्यूरेसी भी जो है वो लाई करता है इसी में ही, 96.49 जो है वो इसी रेंज में लाई करता है हमारा। तो हमने एक चीज़ तो देख लिया कि हमारा अगर कोई भी अगर ओवरफिटेड मॉडल रहता है तो हम उसे क्रॉस वैलिडेशन करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो क्रॉस वैल स्कोर जो था इसका एक एवरेज देख लेते हैं कि इसका एवरेज कितना है। क्रॉस वैल स्कोर ऑफ सेम मॉडल 2 एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स ट्रेन वाई ट्रेन तो ये हमारा हो चुका है। तो हम उसका एवरेज निकालेंगे कि हमारा एवरेज कितना था। तो सॉरी CCR, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एवरेज भी है वो 94.97% निकल रहा है और हमारा यहाँ पर भी जो था वो 92% था व्हेन वी अप्लाइड अ सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन विथ क्रॉस वैलिडेशन। अब हमने सारा ही ऑलमोस्ट फीचर्स ले लिया था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो मीन था वो 94.97% आया है और हमारा जो एक्यूरेसी भी जो है वो 0.96491 आया, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 96.5% एक्यूरेसी है। यहाँ पर भी हमारा जो है 94.97 यानी कि ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि अराउंड लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द स्क्वायर्ड एरर कंफ्यूजन मैट्रिक्स मीन स्क्वायर्ड एरर। सिर्फ एक ही स्क्वायर एरर हम लोग चेक कर सकते हैं, सिर्फ एक ही फिलहाल अभी चेक कर रहे हैं हम लोग एरर। तो लेट्स सी इफ इट गिव्स और नॉट। सो मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ वाई ट्रेड एंड वाई टेस्ट जनरली ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम मीन स्क्वायर एरर है, ओनली 0.03 का। इंडीड इसमें बोथ बायस भी एंड वेरिएंस दोनों ही हैं, बट इसका एरर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जो हम लोगों ने जैसे लीनियर रिग्रेशन के केस में देखा था टन्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस में था ओवर फिट का। फिर जब हम लोगों ने इसका अंडर फिटिंग केस देखा तो उसमें भी बहुत ज्यादा था 1556,000 समथिंग। बट जब हम लोग क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हैं और तो जब हम इसका एरर निकाल रहे हैं तब आप देख रहे हैं कि ये 0.10 हो चुका है, बहुत ही मिनिमल एरर है 0.03 का। तो आप अपने इस मॉडल को आप एज ए यूज कर सकते हो क्योंकि इसने जनरलाइजेशन सीख लिया है, अब इसको अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट SGD देखेंगे। तो उसके लिए भी
हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसका एक क्लासिफायर इंपोर्ट करा लिया है हमने. Now we will look at stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent. तो हमने ऑलरेडी एसजीडी क्लासिफायर ले लिया है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसजीडी यहाँ पर लेंगे, एक इंस्टेंशिएट करेंगे एसजीडी क्लासिफायर को. तो next what we will do is the SGD classifier हमने उसे ले लिया. ओके, नाउ अब हम लोग इसका एक पैरामीटर्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है. ओके, सॉरी. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेगुलराइजेशन पैरामीटर है 0.001. ओके, और एवरेज इक्वल्स फॉल्स है. एप्सिलॉन यहाँ पर 0, अर्ली स्टॉपिंग इक्वल्स टू फॉल्स है. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अर्ली स्टॉपिंग इक्वल्स टू ट्रू करेंगे इसको. ओके, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि अर्ली स्टॉपिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ द जनरलाइजेशन ऑफ मॉडल. तो हम लोग यहाँ पर इसको अर्ली स्टॉपिंग को ट्रू करेंगे. एंड एप्सिलॉन, ओके, ईटा, फिट इंटरसेप्ट इज टेंड्स टू ट्रू, लर्निंग रेट इज ऑप्टिमल. यहाँ पर और एक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर जो हम लोग यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करेंगे, दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट a stochastic gradient classifier into a logistic regression classifier. So बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंज लॉस यहाँ पे दिया हुआ है. हम लोग यहाँ पर हिंज लॉस की जगह पर क्या करेंगे, इसे हम लोग लॉग लॉस देंगे, दैट इज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन लॉस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड पेनल्टी इक्वल्स टू L2A टॉलरेंस लेवल, इसमें 0.001 है और वेयर एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन में 0.0001 था. तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर. ओके, और हम क्या क्या यहाँ पे अपडेट करना है, हमें पहले अर्ली स्टॉपिंग करना है. सो अर्ली स्टॉपिंग इक्वल्स ट्रू, हमें अर्ली स्टॉप करना है. लॉस हमारा होगा लॉग लॉस. हम लोग एसजीडी क्लासिफायर को एज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहले अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं. लॉग लॉस एंड अगर आप लॉस की जगह पर स्क्वायर्ड लॉस करते हैं तो वो एज लीनियर रिग्रेशन काम करेगा विथ एसजीडी रिग्रेसर. ओके, यहाँ पर हम लोग लॉग लॉस यूज कर रहे हैं तो ये एज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा एक्ट करेगा. ओके, सो यहाँ पे अल्फा हमारा जो रेगुलराइजेशन पैरामीटर है वो आप देख सकते हैं कि 0.0001 है. ओके, और अगर आप चाहो तो यू कैन प्ले विद द अल्फा वैल्यू. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज we will fit the training part out of it. So first instantiate, so SGD equals to this and SGD dot fit. One more thing, it is not necessary that you will use a particular model with the different kind of data set. अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर इस डेटा सेट के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ वही मॉडल यूज करूंगा तो ये भी हो सकता है कि आपका वो डिसीजन राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है. सो इट्स अ कंप्लीट प्रोबेबिलिटी. तो बेटर ये होगा कि आप जो भी डेटा सेट ले रहे हो उसे ट्राई करो कि 3-4 मॉडल्स पे ट्राई करो और देन फाइनल जो मॉडल जो आपका होगा, फाइनल जो आपका जो आउटपुट होगा, एक्यूरेसी के बेस्ड पर, आपका स्कोर के बेस्ड पर आप उसे चूज करो. इंडीड इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है बट दिस इज द मोस्ट
वायबल टेक्निक यू कैन अप्लाई। क्योंकि अगर आप किसी एक ही मॉडल के, अगेन बायस का कंसेप्ट आ जाएगा, अगर आप किसी एक ही मॉडल के टुवर्ड्स बायस रहोगे तो हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो मॉडल है वो उतना अच्छे से काम ना करे टू डिफरेंट वैल्यूज। तो अब हम इसमें फिट कर लेते हैं g.fit x ट्रेन कॉमा y ट्रेन। हमारा फिटिंग हो गया है यहाँ पे। तो फिटिंग हो चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अर्ली स्टॉपिंग इक्वल्स टू ट्रू है, अल्फा इक्वल्स टू 0.001 बाय डिफॉल्ट जो था हमारा वही है, एप्सिलॉन 0.1 है, लर्निंग रेट इज ऑप्टिमल, लॉस इक्वल्स टू लॉग लॉस, हम लोग इसको एज ए लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रीट कर रहे हैं, मैक्स एटर इज 1000। ओके, और L2 पेनल्टी ही यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज SGD pred equals to SGD.predict, SGD.predict। आप यहाँ पे देख सकते हो और एक चीज कि यहाँ पर प्रेडिक्ट लॉगरिथम प्रोबेबिलिटी भी है और प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी भी है, हम आप यूज कर सकते हैं, बट हम लोग नॉर्मल प्रेडिक्ट से ही यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। एक्स टेस्ट, तो हमारा प्रेडिक्शन हो चुका है। नाउ लेट्स चेक द एक्यूरेसी ऑफ इट। एक्यूरेसी स्कोर ऑफ SGD pred कॉमा y टेस्ट। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाई द अर्ली स्टॉपिंग, तो यहाँ पर हमारा जो एक्यूरेसी है वो 93.56 आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट 94% एक्यूरेसी। हमने हमारे पास एक ही डेटा सेट है ब्रेस्ट कैंसर का, हम उसी एक डेटा सेट पर हम लोगों ने इतने सारे मॉडल्स को ट्राई किया। पहले हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे ट्राई किया, पहले हमने, तो हमारा 96% आया एक्यूरेसी, 96.49। हमने उसे क्रॉस वैलिडेट किया, तो क्रॉस वैलिडेशन में हमारा आया 92.97 के आसपास एवरेज। और फिर हमने जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद CV जब अप्लाई किया तो हमारा एक्यूरेसी है 96.49%। ओके, फिर हमने फर्दर उसको ट्राई किया फर्दर क्रॉस वैलिडेट करने के लिए, तो भी हमारा वो आया टुवर्ड्स 94.97%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जितना भी उस पर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, वो नियर अबाउट उसी रीजन में ही है। फ्रॉम, अगर आप देखें तो एक रेंज हो गया है यहाँ पे, फ्रॉम 90 टू 9, फ्रॉम अगर देखा जाए तो 91 टू 96 के बीच में ऑलमोस्ट सारे जितने भी मॉडल्स हमने अभी तक ट्राई किया वो सारे उसी के बीच पे ही लाई कर रहा है। मीन स्क्वायर्ड एरर भी यहाँ पे बहुत कम था। अब यहाँ पर हमारा एक्यूरेसी जो है वो आया है 0.93.56 इन ऑलमोस्ट 94%। अब हम लोग इसका एरर भी चेक कर लेते कि एरर कितना है इसमें। सो ये मीन स्क्वायर्ड एरर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। So let's check. So 0.06% error है. That means we have minimized the error, but it tends to 0. It is tends to 0, not equals to 0. So 0.06 है. So it's you can allow this amount of error. आप इतना amount of error को allow कर सकते हैं अपने मॉडल में, क्योंकि आपका मॉडल जो है वो generalized हो चुका है। इन सब के बाद हम लोग टोटल जो भी अभी हम लोग का तो यहाँ पे एक ले रहे हैं, हम लोग एक टेस्ट सेट एक लेंगे विथ अननोन डेटा विथ रेस्पेक्ट टू ऑल द फीचर्स दैट वी हैव, लाइक मीन रेडियस, मीन टेक्सचर, मीन पेरीमीटर। हम लोग एक डेटा कॉलम्स से ही हम लोग एक उठाएंगे और उसको फिर चेक करेंगे कि हाउ मच इट हैज जनरलाइज्ड। ओके, फिर हम लोग उसी वैल्यूज को फिर चेक करेंगे कि उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है और उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद क्रॉस वैलिडेशन, लॉजिस्टिक फिर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हम लोगों ने लिया। ओके, अगर आप चाहो तो डिफरेंट लॉस फंक्शंस भी इसमें अप्लाई कर सकते हो।
और यहाँ पर पार्शियल फिट अगर आप करते हो तो आप यहाँ पे एक वैल्यू एरर दे सकते हो, अर्ली स्टॉपिंग शुड बी फॉल्स विद पार्शियल फिट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट ट्राई कर रहे थे, इसलिए इसने एरर दिया, क्योंकि हमने अर्ली स्टॉपिंग टेक्निक इसमें अप्लाई किया था। जब ये फॉल्स होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्ली स्टॉपिंग शुड बी फॉल्स विद पार्शियल फिट। जब आप मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट जब कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप नॉर्मल लॉजिस्टिक सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी कर सकते हैं, वहां पे फिट की जगह पे जस्ट आपको पार्शियल फिट करना है, प्रोवाइडेड आपको एक इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करना होता है फॉर पार्शियल फिट। ओके, तो हम लोग एक नॉर्मल जस्ट फिटिंग कर रहे हैं। तो आपका जब मॉडल जब रेडी हो जा रहा है तो एक एक्यूरेसी एक दे रहा है। ओके, तो ये जितना भी एक्यूरेसी है ये सब आपका क्रॉस वैलिडेटेड है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, क्रॉस वैलिडेशन मैंने सबको पहले बताया कि ये ओवरफिट होने से आपको रोकता है और जनरलाइजेशन करने में आपकी मदद करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन जो है आप वो अप्लाई कर सकते हो, इंक्लूडिंग SVM में आप कैसे रेगुलराइजेशन अप्लाई कर सकते हो, KNN में कैसे आप अपना रेगुलराइजेशन अप्लाई कर सकते हो, और एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लासिफायर होता है नोन एज द ग्रेडियंट डिसेंट क्लासिफायर, जो कि हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।